जय माता दी आदेश। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम टू द इवनिंग शो ऑफ मार्केट एनालिसिस। मेरा नाम है विशाल। दिस इज़ 501st एपिसोड ऑफ डेली लाइव एनालिसिस, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल मार्केट्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स, कमोडिटीज़, फॉरेक्स, क्रिप्टो करेंसी, everything. So good evening and welcome to today's session. So let us quickly start the session. Yesterday we had a pretty long session of almost 100 and of almost 1 hour 30 minutes. So today I would like to keep it very brief, very short. So as of now, Nasdaq is up, Dow Jones is up, US markets have bounced back from yesterday's bottom. So pretty much going as per the plan. So this is the zone, and it is bouncing back. So overall, I'm bullish on US market for further up moves to come. Nasdaq आज एक अच्छी बढ़त के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है. Nasdaq is trading 1.7% positive, almost retracing entire yesterday's loss. So taking support at the channel support की बात हुई थी, and very nice structure. So I think Nasdaq में काफ़ी अच्छा स्कोप है बाउंस बैक करने का. अगर Nasdaq ऊपर जाता है तो IT स्टॉक्स वगैरह में थोड़ी सी एक रिलीफ यहाँ पे होगा. Now, one very interesting thing which has happened today is UK. UK has almost literally sort of ended the COVID pandemic by saying that there is no need of vaccination and all those things. So वो एक major एक news item है जो आज रिलीज हुआ है शाम को. And because of that, European markets are also trading in green. Now, one another important thing which is happening is emerging market ETF. This is almost up by 2%, and this is a very nice recovery that is coming in the emerging market ETF. Now, if you are a regular watcher, you should know that since last 1 year, if you see, this is Feb 2021. Since last 1 year, it peaked somewhere in January or Feb, initial half of Feb, and since then it has been in a very large downtrend. Now, as of now, it is making a very nice inverse head and shoulder pattern also. Although it is at resistance, this is a major resistance. $50 is a round number also. But if it starts to break above this, then that would really mean very bullish for emerging market. So Nifty has been an outperformer for the emerging markets for past 1 year. I'm not sure whether it will continue to outperform the emerging market ETF, because I think now more weightage will be given to other Asian markets like Hang Seng and Japanese Nikkei, Taiwan, and I think these markets, because especially the Hang Seng has not performed well since last almost 2 years, even since the start of COVID. So you can see Hang Seng has been in a very strong downtrend because of China factor. So I think this index is the one that will definitely shoot much higher in the emerging market ETF basket. Okay, कीपिंग असाइड ऑल दीज थिंग्स, सो ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव हैं, सेंटिमेंट्स जो हैं ठीक है, इस समय इम्प्रूव हो रहे हैं. एंड लेट अस सी व्हाट्स इन स्टोर फॉर टुमारो सेशन. एक बार फॉरेक्स मार्केट पे नजर डालेंगे. यूएस डॉलर अगेन इट हैज कम बैक. इट इज सिंपली hovering in this area. So for next few days I think it will stay somewhere in this area, and now from Monday itself next round of clarity will come, whether it is bullish or it is bearish. Overall, I think it's going to remain pretty much range bound in this entire space. Because US dollar is slightly down, we are seeing good bounce in the British pound. British pound is also recovering because of good news coming from Boris Johnson. So that is also helping the British pound. Yesterday it made inside bar. Even today is also sort of inside bar. So overall, I'm not expecting very large upside, but yeah, this is a good top for the British pound, and there must be some sort of decline in coming days. I'm expecting this sort of decline to happen. हैविंग सेड दैट, आई थिंक यूएसडी आईएनआर एंड फॉरेक्स पे जो कल मैंने डिस्कशन किया है वही लेवल्स ऑपरेट होंगे. सो लेट अस मूव टू द कमोडिटी सेक्शन. ओके, नाउ कमोडिटीज में बहुत ही एक्शन हो रहा है, बहुत ही somehow I'm getting a feeling कि कमोडिटीज में बहुत ज़्यादा लगता है पैसा घुसा है. आई मीन कमोडिटीज is looking like a hot theme for this year. ओके, सो सबसे पहले नेचुरल गैस से शुरू करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो चुका है और नेचुरल गैस ने थोड़ा सा
मुझे भी सरप्राइज कर दिया है। येस्टरडे आई स्पोक अबाउट हाउ 290 शुड कम, सो 290 तो आ चुका है, बट वहां से भी नेचुरल गैस ऑलमोस्ट 8 पॉइंट और नीचे गिर चुका है। इट इज राइट नाउ ट्रेडिंग एट 282, सो दिस इज टू मच। ओके, ये थोड़ा सा ज्यादा फॉल है। uh, थोड़ा सा एक रीजन ये भी हो सकता है बिकॉज यूएसडी आईएनआर इज स्लाइटली डाउन प्लस नेचुरल गैस इज ऑल्सो डाउन, सो ये दोनों एक डायरेक्शन में है, तो उस वजह से एमसीएक्स पे ज्यादा रिएक्शन हमें देखने को मिल रहा है एज कम्पेयर टू कॉमेक्स। सो इवन इफ यू सी हियर, नेचुरल गैस एट कॉमेक्स इज डाउन बाय 5.7 एंड एमसीएक्स पे 1.5% और ज्यादा है, तो राउंड अबाउट 6 पॉइंट जो है, लगभग 5 से 6 पॉइंट एक्स्ट्रा यहाँ पे डिक्लाइन हो रहा है। ओके, तो अब इसको कैसे मैनेज करेंगे? सी यहाँ पे एक एक अच्छा सपोर्ट, अगर मैं कॉमिक्स के चार्ट को रेफर करूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए यहाँ पे बिकॉज कॉमिक्स का चार्ट काफी अच्छा मुझे लग रहा है। ओके, इवन आफ्टर टुडेज फॉल कॉमिक्स चार्ट इज लुकिंग गुड फ्रॉम अ मीडियम टर्म परस्पेक्टिव, सो वी आर ऑलमोस्ट एट अ वेरी नाइस सपोर्ट। थोड़ा 2-4 पॉइंट और ऊपर नीचे हो सकता है, but this is a very very fabulous support. Now holding this support, every time natural gas has given a very nice rally. Entire last year's rally started from this level. Recently in December we have taken support at this trend line, so now we are very close to that level. तो एक तो ये चीज है कि थोड़ा सा और डाउन साइड इसमें आ सकता है, बट इट इज अ गुड सपोर्ट जोन। नाउ if I talk about the monthly chart of natural gas, that is also telling something very unique. And if we look at the monthly chart, it has been declining for the past 3 months. This is the fourth bearish candle, but this candle is very interesting in nature. जिन्होंने भी मेरी प्राइस एक्शन ट्रेनिंग अटेंड की है उनको पता होगा कि क्यों ये इंटरेस्टिंग है। सो दैट इज वाई आई थिंक नेचुरल गैस में इस समय मैनेज करना थोड़ा कठिन है, बट ओवरऑल व्यू जो है ये पॉजिटिव है। सो आई बिलीव नेचुरल गैस थोड़ा एमसीएक्स पे थोड़ा और नीचे जा सकता है, 278 आई थिंक 4 पॉइंट्स पॉसिबल है, बट ओवरऑल आई थिंक इट शुड टेक सपोर्ट एंड यहाँ से वापस से इसमें एक रिवर्सल होना चाहिए। वीकली चार्ट्स एक्सेट्रा, these are not bad as of now. Okay, yes, there is a very high velocity selling, but natural gas का मार्केट ऐसा ही होता है दोस्तों, इसमें बाउंस भी बहुत ही फास्ट होता है, ड्रॉप भी बहुत फास्ट होते हैं। ओवरऑल आई थिंक if you can manage, then you should be in this trade or else you should exit. तो यहाँ पे नेचुरल गैस में हम एक चीज ये कर सकते हैं कि फिलहाल फॉर द टाइम बिंग हम देखते हैं कि क्या अच्छे लेवल्स हैं। सो वी कैन से दैट 280 से 282 ये एक अच्छा सपोर्ट जोन है फॉर व्हाट, फॉर 295 टू 300। ओके, अब इस ब्रैकेट में अगर हम बाय कर रहे हैं तो हमें आइडियली 275 या 277 एक्सेट्रा आप ऐसे स्टॉप लॉस रख सकते हो। यहाँ से ये 10-20 पॉइंट 15 पॉइंट का एक ट्रिप मिलता है तो इसको बेचो, अगेन वेट वेट करो कि क्या होता है। सपोज अगेन इट ड्रॉप्स बैक टू दिस रेंज, अगेन बाय करो अगेन, तो इस रेंज में हम रोटेट करके थोड़े बहुत पॉइंट्स एक्यूमुलेट कर सकते हैं। नाउ लेटर ऑन वंस इट स्टार्ट्स टू मूव अप, इट मस्ट क्रॉस 305। ओके, सो जिस दिन ये वापस से, यानी आज का जो हाई है, आज का हाई आई थिंक समवेयर नियर 303 305 है। सो वंस वी क्रॉस दैट लेवल, after that again it should spike and again we should get such kind of a move towards 340 360 and all those levels. Okay, so natural gas यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, थोड़ा सा वॉच करना होगा। 280 से 300 के बीच में अगर 2-4 रोटेशंस मिल गया तब तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, बिकॉज इन एवरी रोटेशन यू कैन अर्न ऑलमोस्ट 10 to 15 पॉइंट्स बेयर मिनिमम। So if it rotates for 3-4 times, that is very good for traders. And post that, if it starts to break out, which I think has a very strong chance, because usually this kind of a structure looks very bearish, but eventually ये bullish में ही transform होता है। तो हम देखेंगे आने वाले दिनों में, फिलहाल इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलेंगे। रेंज बाउंड 280 से 300 के बीच में रोटेट करना है, प्रॉफिट्स लॉक करने हैं, बिकॉज इट माइट गिव यू 3-4 रोटेशंस, तो उसको हमेशा रोटेट करके, एमसीएक्स इज ऑल अबाउट रोटेटिंग एंड बिल्डिंग योर इनिंग्स। इट इज जस्ट लाइक क्रिकेट। एमसीएक्स इज नॉट लाइक इक्विटीज कि बाय एंड होल्ड किया तो हो जाएगा, नहीं, यहाँ पे आपको जो है चर्निंग और रोटेशन बहुत जरूरी है। ओके, सो हैविंग सेड ऑल दीज थिंग्स, लेट अस प्रोसीड फर्दर। दूसरी कमोडिटी की बात करते हैं इस समय, जो है कॉपर। सो कॉपर में
शानदार इसमें जो है गेन्स आ चुके हैं। कॉपर में जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन थी वैसी बिहेव हो चुकी है 757, एंड आई हैव एडवाइज्ड कि कॉपर जो है थोड़ा और ऊपर जाना चाहिए 760 765 and possibly, so I will hold copper and go for tomorrow. Why? Because I think tomorrow, if global markets remain slightly positive, okay, जैसे आज जो sentiments है इस वक्त अगर ऐसे भी maintain रहे, इससे बहुत ज्यादा नहीं, अगर ऐसे भी मेंटेन रहे तो भी काफी एक चांस है दोस्तों कि कल कॉपर गैप अप खुले, एंड टुमारो इफ इट ओपन्स गैप अप नियर 760 इट विल फ्लाई लाइक अ रॉकेट. Okay, so that is why I would like to take a chance with copper, and जो पुराना view है हमारा that it should go till 765. This is where the resistance comes. अगर 765 शूट करता है तो बहुत बड़ी गेन हो जाएगी, क्योंकि 740 743 से इसमें मैंने जो है आपसे लॉन्ग कराया है, तो ये बहुत ही एक शानदार ट्रेड है. आई थिंक वी शुड कैरी. ओके, नाउ जो सेफ ट्रेडर्स हैं आप बुक कर सकते हो, आपको ऑलरेडी 13-14 पॉइंट्स मिल रहा है, सो इट्स वेरी ह्यूज. कॉपर की लॉट साइज भी बहुत ज़्यादा है, बट इफ़ यू वांट टू टेक अ चांस तो लेना चाहिए मेरे ख्याल से. दीज आर द प्लेसेस वेयर वी मस्ट टेक सच सॉर्ट ऑफ चांस. वी हैव अ वेरी नाइस coiling structure over here, and plus we have already seen how nickel has rocketed. nickel आप देखिए कि आज भी कितना ऊपर था, ऑलमोस्ट 1800 के ऊपर. एल्यूमिनियम पे हम बुलिश हुए थे थोड़े दिन पहले, लेड, जिंक, ऑल दीज. जिंक आपको याद होगा, आई थिंक 3 दिन या 4 दिन पहले जिंक मैंने एक आपको लॉन्ग करने बोला था 290 टू 290 के रेंज में, राइट. मैंने कहा था कि इसको आप ब्रेकआउट बाय कर सकते हैं, और स्ट्रेट अवे हमारा टारगेट होगा 309 या 310. सो दैट वाज आल्सो मैसिव ट्रेड. इट हैज फाइनली ब्रोकन आउट. सो जिंक में हालांकि आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल फॉलो ऑल दिस थिंग्स, बट जिंक में अगेन वेरी वेरी नाइस ट्रेड, एंड दिस विल कीप रनिंग टिल 310 is tested. That is the next resistance. So zinc has worked nicely. lead वहीं का वहीं है. lead में भी आप लॉन्ग वगैरह कर सकते हैं. it is at support level, so no harm. and lead में आपको स्पाइक अप मिलेगा किसी भी दिन, सीधे आपको 10-12 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाएगा. पेशेंस रखना होगा. एल्यूमिनियम इज मूविंग वेरी नाइसली 245. ओके, सो एल्यूमिनियम एक और रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है. सो आई एम बुलिश ऑन हिंडाल्को. आई थिंक हिंडाल्को शुड कंप्लीट इट्स टारगेट वेरी वेरी सून. एक बार क्रूड ऑयल पे नजर डालते हैं. सो क्रूड ऑयल ट्रेडिंग एट 64.38. So yesterday, what a massive rally in crude oil, made a new high, new recent all-time high at 65 exact top यहाँ पे बना है, and then rollovers happened, and today we are seeing a negative opening in crude oil. Now see, crude oil में क्योंकि just अभी एक rollover हुआ है, ओके, आई बिलीव क्रूड ऑयल में मैं इस वक्त थोड़े दिनों के लिए रेंज बाउंड रहना पसंद करूंगा. आई बिलीव वी हैव 6500 एज अ मेजर रेजिस्टेंस एंड 6300 एज अ सपोर्ट. सो इसमें थोड़ा स्मार्ट ट्रेड्स करेंगे, यू नो, लाइक लॉन्ग शॉर्ट बोथ सॉर्ट ऑफ ट्रेड्स मस्ट बी टेकन, एंड लेट इट कूल ऑफ फॉर सम टाइम. After that we will see whether it is going to give a fresh breakout, or that's it, if this was a top, and then we can start some decline. नाउ सो दैट 65 ये जो रेजिस्टेंस है ये मेरे ख्याल से बहुत ही क्रिटिकल होगा, बिकॉज इफ वी लुक एट सम हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स, इफ आई शो यू सम लॉन्ग टर्म क्रूड ऑयल चार्ट्स, ओके, दिस वाज कोविड पैनिक बॉटम जहां पे क्रूड ऑयल ऑलमोस्ट माइनस में चला गया था कॉमिक्स में. सो इफ वी लुक एट द लॉन्ग टर्म चार्ट, वी हैव हिट सम मेजर रेजिस्टेंस. ओके, सो ये चार्ट आपको दिखाई नहीं देगा ठीक से क्योंकि log chart hai. So this is the resistance zone that I'm talking. So right from this 2018 high, if you connect, then you will get this zone of 6550 to 6600. That is a major resistance over there, and now 6200 is actually the main support. So crude oil में क्योंकि हाईएस्ट प्राइस पे रोल ओवर हुआ है, जो लोग एमसीएक्स के खिलाड़ी हैं आप जानते हैं कि एमसीएक्स में अलग किस्म की सेंटिमेंट्स और अलग किस्म की थोड़ी टेक्निकलिटीज चलती हैं. सो क्रूड ऑयल में आई वुड नॉट गो लॉन्ग अनलेस वी गो डाउन, ओके, और वी हैव अ फ्रेश ब्रेकआउट. सो मेरे हिसाब से क्रूड ऑयल में इस समय जब तक कल का हाई क्रॉस नहीं होता है, ऊपर के लेवल्स अगर मिले समवेयर क्लोजर टू, आई थिंक आज मैंने ग्रुप में भी शायद ये अपडेट दिया है कि इसको 6500 के आसपास जो है शॉर्ट करना चाहिए, बिकॉज 65 से 6300 का रेंज मैं देख रहा हूँ.
So I think a little while back, if I'm not wrong, it had shot up almost till 65, yes, 64, 80 तक ये गया था, and then very sharp crack has come for 50 points. तो क्रूड ऑयल में मेरे ख्याल से अच्छा रोटेशनल ट्रेड्स मिलेंगे, यहाँ पे आप कर सकते हैं. सो प्रीटी मच दैट्स अबाउट इट. गोल्ड और सिल्वर की बात कर लेते हैं. तो गोल्ड आ चुका है अपने एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस जोन पे, and I don't know why last time also it did a very similar price action here. If you see, there was a breakout, good candle, then a small candle, similarly breakout, good candle, then a small candle. So इसे मैं कल पे छोड़ता हूँ, because over here, yes, there is more upside, no doubt. It can go till 48,800. That is a good possibility. But I don't know why. I'm not very, very keen on taking adventure or doing adventure in gold. मेरे ख्याल से I would sit aside, and tomorrow I will see if there is sort of a failure. तो मैं इसको short करने में बिल्कुल भी हिचकिचाऊंगा नहीं. And one trip should come till 47,600. Okay. सो अभी कोई प्लान डिसाइडेड नहीं है. लेट अस सी, अगर ये रिपीट होना है, ओके, तो फिर हम शॉर्ट साइड प्ले करेंगे 47,600. एंड स्टॉप लॉस मैं अभी दे देता हूँ आपको कि 48,650 ये स्टॉप लॉस होगा. तो अगर आप सपोज कल आप देख रहे हैं, आपको वीकनेस लग रहा है, शॉर्ट वगैरह करना चाहते हो, तो 48,650 का स्टॉप लॉस होना चाहिए. एंड डाउन साइड में 1000 पॉइंट का पोजिशनल टारगेट होगा. ये पहला टारगेट होगा 48,000, एंड देन फाइनल टारगेट होगा 47,600, जहां पे और या फिर जहां से हम वापस एक बाइंग करेंगे. ओके. सो आई एम सेंसिंग सम गुड मूव्स टू कम इन गोल्ड राइट आफ्टर दिस जनवरी मंथ. यानी जो फेब का कॉन्ट्रैक्ट है वो एक बार एक्सपायर हो जाए, तो उसके बाद मेरे ख्याल से गोल्ड में एक्सप्लोसिव मूव्स होने वाले हैं. हजार हजार पॉइंट विद इन 24 आवर्स इस टाइप की मूव्स गोल्ड में होने वाले हैं. सो वी हैव टू बी रेडी फॉर दैट. फॉर द टाइम बिंग ये व्यू है मेरा गोल्ड में. कल अगर गैप अप खुलता है दोस्तों आज के हाई के ऊपर, तो किसी भी तरीके से शॉर्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज दैट वुड मीन इट्स स्ट्रॉन्ग, एंड 48,800 विल श्योरली कम. दैट इज वेयर द नेक्स्ट रेजिस्टेंस लाइज. वेरी वेरी स्वीट चार्ट, वेरी वेरी परफेक्ट चार्ट है हमारे पास गोल्ड का. सो इसका फायदा उठा सकते हैं. ओके. सिमिलरली सिल्वर इज ऑल्सो वेरी बुलिश. सिल्वर ने थोड़ा और मुझे सरप्राइज किया, बिकॉज मुझे लगा था 64,000 का रेजिस्टेंस जो है ये इसे रेजिस्ट करता, बट इट हैज सरप्राइज्ड मी ऑनेस्टली स्पीकिंग. सो सिल्वर में अगेन बहुत ही शानदार मूव्स आई हैं. अगर आपको प्रॉफिट्स है तो आप थोड़ा लॉक कर सकते हैं. इनफैक्ट लॉक करना चाहिए प्रॉफिट्स को. ऑल राइट. सो दैट्स ऑल अबाउट योर कमोडिटीज. एक बार हम क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में चलते हैं, क्योंकि आज का पूरा फोकस क्रिप्टो करेंसी पे था. और क्रिप्टोज में जैसा मैंने आपको कल या परसों कहा था कि मैंने जो है दो चार बहुत ही अच्छे ट्रेड सेटअप्स मैंने बताए हैं ग्रुप मेंबर्स को. सो क्रिप्टो में आई एम बुलिश, एंड एज वी हैड डिस्कस्ड फ्यू डेज बैक दैट आई एम एक्सपेक्टिंग इथेरियम. हमने डिस्कस किया था कि कैसे एक डबल बॉटम स्ट्रक्चर बनना चाहिए, एंड आफ्टर दैट इट शुड बाउंस. एग्जैक्टली ये चीज़ हो रहा है, और बहुत ही टेरिफिक मूव आया है आज इथेरियम में. वेरी वेरी नाइस. 3100 से ऑलमोस्ट 3300 एक शॉट में. बहुत ही शानदार, बहुत ही उम्दा जो है मूव्स इसमें देखने को मिल रही हैं. सो मैंने ऑलरेडी इसमें लॉन्ग इनिशिएट करवा दिया है. अगर कोई टिप आती है तो आप बाय कीजिए 3150, 3160, समवेयर हियर, समवेयर अराउंड येस्टरडेज हाई. ओके, यू कैन बाय प्रॉब्ली मिडनाइट वगैरह में, रात को 2 बजे 3 बजे ऑर्डर्स आप लगा सकते हो सकता है. एंड बट उसके साथ स्टॉप लॉस भी लगा देना, नहीं तो सुबह उठोगे तो अकाउंट खाली हो जाएगा. सो डोंट डू ऑल दो सिली मिस्टेक्स. ओवरऑल आई एम बुलिश ऑन क्रिप्टो. ओवरऑल बहुत सारे कॉइन्स मैंने, एक्सी इन्फिनिटी मेरा ऑल टाइम फेवरेट, जब से मैं क्रिप्टो को वॉच कर रहा हूँ, फैंटास्टिक एक ही दिन में. ओके. सो इसमें जो है मैंने परसों बाय सजेस्ट किया था अराउंड 70, एंड टुडे इट इज ऑलमोस्ट अप बाय 8%. BNB अगेन वेरी नाइस. मैटिक 6.5% ऊपर है, बहुत ही बढ़िया. सो आई एम वेरी वेरी आई एम लाइकिंग दिस एंटायर रिवर्सल्स इन दी क्रिप्टो स्पेस. बहुत सारे कॉइन्स हैं ना, सोलाना, लूना, बहुत फैंटास्टिक मूव्स आए हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव्स हैं. नाउ व्हेन देयर इज अ कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेंथ और वीकनेस अक्रॉस द बोर्ड, तो यहाँ पे चाहे वो इक्विटीज हों, चाहे वो क्रिप्टोज हों, करेंसीज हो, जो भी एसेट क्लास है, डजेंट मैटर,
one thing you should always remember, this is what I've learned, that whenever there is a similar charts across the board, whenever there is a strength, sign of strength across the board, or whenever there is a weakness across the board, उस समय एक चीज हमेशा गौर करना चाहिए कि जब कोई रिवर्सल हो रहा है तो उसका फॉलो थ्रू मिलना बहुत जरूरी है, ठीक है। नहीं तो अगर फॉलो थ्रू नहीं होगा तो दोस्तों, क्योंकि ये सारे चार्ट्स रेडी थे, ऑल दीज स्क्रिप्ट्स वर रेडी टू रंबल, बट it started off and then they are not doing anything. So what will happen is that entire preparation goes for a toss and then they fall very badly. Okay, सो ये चीज जो है ध्यान देना चाहिए, स्पेशली व्हेन देयर इज अ सिंक्रोनाइज्ड चार्ट स्ट्रक्चर अक्रॉस द बोर्ड। तो अभी तो सब बुलिश है, तो इसीलिए स्टॉप लॉस लगा के काम करना फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, जो थोड़े मीडियम लेंथ के ट्रेडर्स हैं, जो मीडियम टाइम फ्रेम के ट्रेडर्स हैं, आप लोग थोड़ा सा उसमें लीवे दे सकते हैं। फ्यूचर्स ट्रेडर तो बिना स्टॉप लॉस के बिल्कुल भी काम मत करना, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है अगला 24 घंटा क्रिप्टो मार्केट के लिए। अगर थोड़ा और कैचअप होने लगा तो सब में मैसिव शॉर्ट कवरिंग आएगा, ह्यूज अप मूव्स अगले 24 घंटे में देखने को मिल जाएंगे। बिना स्टॉप लॉस के काम मत करना, ठीक है। सो दैट्स द अपडेट कमिंग इन द crypto market. Due to lack of time I could not discuss, varna if you see I have charted almost 50 crypto coins over here, all complete chart setup hai, all from all time frames, from monthly to long term, short term, scalping, सारे charts ready हैं, but time नहीं है। Okay, आते हैं, I think let us come to the stock market. So stock market पे चर्चा करते हैं दोस्तों। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिए, एंड इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं आप। एंड वन लास्ट शाउट आउट, इस वीकेंड ट्रेनिंग है, सो एनीबडी इफ यू वांट टू स्नीक इन एट द लास्ट आवर, आज रात को 12 बजे तक आप ज्वाइन कर सकते हैं। दैट्स इट, देन registrations are done, closed, and tomorrow we will add all the new people in training group. They have already been added in our regular telegram group, जहाँ पे हम दिन भर डिस्कशन वगैरह करते हैं, फीडबैक्स, डाउट्स एंड ऑल दोस थिंग्स हैपन। सो दैट्स द अपडेट। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट स्टॉक मार्केट वेरी क्विकली। ब्रॉडर मार्केट्स को चेक करते हैं। ब्रॉडर मार्केट्स में क्या हुआ आज भी, वंस अगेन मिड कैप इंडेक्स फ्लैट, ठीक है। इसने आज भी कल का बॉटम प्रोटेक्ट किया है, वेरी नाइस स्ट्रक्चर, वेरी नाइस रिवर्सल, आज पूरा विथस्टैंड किया है। स्मॉल कैप इंडेक्स अगेन फ्लैट। So this is now getting very interesting. Why? Because if you compare the small cap index, mid cap index, and even to some extent the CNX 500, okay, especially mid cap and small cap, they are showing uh, insane resilience to the decline that is coming in Nifty. So what does it mean? दोस्तों इसका जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब है। इसका मतलब ये है, दो चीजें होने वाली है। नंबर वन, such type of outperformance, or you can say such sort of resilience, happens only in two cases. Number one, when the broader markets uh, have to go a little higher, ठीक है। आपका हेडलाइन जो इंडेक्स है निफ्टी बैंक निफ्टी, वो अपने पुराने ऑल टाइम हाई या थोड़ा सा और ऊपर, दे माइट नॉट गो वेरी वेरी हाई, बट या दे कैन गो हाई बट नॉट लाइक वेरी हाई। बट ये जो मिड कैप और जो आपका स्मॉल कैप इंडेक्स है, इनमें जो है बहुत अपसाइड स्पेंडिंग होती है। या तो ये तब ऐसा रेजिलियंस हमें देखने को मिलता है, या फिर कि दूसरा सिचुएशन ये होता है कि जब पहले एक अगर लार्जर डिक्लाइन शुरू होना है तो पहले आपका हेडलाइन इंडेक्स गिरता है, ठीक है। स्टॉक्स होल्ड करते हैं, लोग एवरेज करते हैं स्टॉक्स को, दे फील दैट स्टॉक्स आर बीइंग रेजिलिएंट, एंड देन आफ्टर 3-4 डेज स्टॉक्स का क्रैक करने का टाइम आता है, ठीक है। सो इसीलिए कल का दिन जो है बहुत क्रिटिकल है। कल का दिन क्यों क्रिटिकल है? नंबर वन, वीकली क्लोजिंग है, फ्राइडे है, नेक्स्ट सीरीज का पहला दिन है। Second, if we look at the chart of Nifty and Bank Nifty, the weekly chart has made a bearish engulfing, but tomorrow closing is still pending. So if bulls are in control, they have to come tomorrow, ठीक है। बुल्स के करण अर्जुन को आना बहुत जरूरी है कल, क्योंकि अगर ये इस तरीके का सेटअप होगा तो गोइंग इनटू नेक्स्ट वीक वी विल हैव टू गो विद अ नेगेटिव बायस, ठीक है। सो ये जो है एक अच्छी बात नहीं है। कल बुल्स को आना चाहिए और बुल्स को थोड़ा सा रिपेयर वर्क
यहाँ पे करना है। डेली चार्ट को हम एक बार अपडेट कर लेते हैं। डेली चार्ट में व्हाट वी हैव सीन इज दिस इज द जोन दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट 17,766। ये एक स्लैब है जहां से लास्ट टाइम इसने ब्रेकआउट किया था, करेक्ट। We went all the way higher and again we have come back and tested this. Now intraday, during the day, because today was weekly expiry, this strike price got breached, but just before the closing there was a good bounce back and it has managed to close or managed to hold this level. मैं इसे कोई अच्छी closing नहीं कहूँगा. I think if Nifty had closed above say 17,800 or just around 17,800, it would have been better. Because ideally I would have loved to see this candle going little higher, at least 17,800. That would have sufficed, but this is not good. Okay, having said that, नीचे का सपोर्ट भी काफी स्ट्रांग है बॉस, 17,550 डीए में है, बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है यहाँ पे. सो इसको हम कल कैसे रीड करेंगे? नाउ एज आई सेड, if bulls have some strength, they have to come tomorrow, they have to repair the weekly chart. Okay, so इस context में कल का ट्रेडिंग स्टाइल और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए? बहुत ही सिंपल है. नंबर वन, mob level होना चाहिए 17,820. Okay, this should be the mob level. Why? Because this is where your 21 DMA is also there. 17,800 का strike price भी है. And if the weekly candle जो इस समय अभी कुछ bearish engulfing है, अगर इसको repair होना है, then this strike price must be breached. That is how that short covering will happen, and it will start. This candle will then start to look something like this. Okay, something with a long tail. Okay, so ये mob level जो है कल सही होगा 17,825. So I'm just writing over here that make or break level for tomorrow is 17,825. आज के लिए हमने क्या रखा था? 17,980 रखा था, करेक्ट. एंड मार्केट जो है एकदम 17,950 से ही गिरना शुरू हो गया, एंड डाउन साइड में 17,700 समथिंग आई हैड सेड. आई थिंक दिस वाज द target given for downside, so that got completed, and in fact it exceeded the target also. Now 17,825, above this we will be bullish. First target हम रखेंगे 17,925. Second target हम रखेंगे 18,030. Two targets on the higher side. On the downside, very easily it can again go back 17,700 and then 17,600. Okay, सो दैट्स इट, दैट्स फॉर टुमारो. लेवल के हिसाब से काम करना है, ज़्यादा कुछ इसमें हम दिमाग नहीं लगाएंगे. अगर गैप अप खुलता है तो बहुत अच्छी बात होगी, एंड इफ देयर इज अ गैप अप ओपनिंग एंड इफ इट इज ट्रेडिंग अबव द वीवैप, देन काइंडली गो लॉन्ग, काइंडली मेंटेन योर लॉन्ग ट्रेड्स. ओके, एटलीस्ट जब तक गैप के नीचे नहीं आ रहा है तब तक तो हमें लॉन्ग होना चाहिए, बिकॉज दैट वुड बी गुड साइन ऑफ अ रिवर्सल. Once it starts to trade above mob level, then momentum shall come, and then 17,925 and 18,000, all these levels can be reclaimed in just one day. So market में अगर स्ट्रेंथ आएगा तो भी बहुत ही सॉलिड स्ट्रेंथ आएगा. मे बी कि एक ही दिन में मार्केट 400 पॉइंट भी रिकवर कर दे, ये भी पॉसिबल है. सो वी आर एट अ गुड लोकेशन, एज यू कैन सी. ये जो बीच में वीकली चार्ट है हमारा, लॉक चार्ट है, वीकली चार्ट है, बहुत ही शानदार है. I think it's worth. This is a place where we got a breakout, we are retesting, so it's pretty cool, pretty okay. But it's just that कि कल हमें 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 कल ऐसा ऐसा कैंडल नहीं देखना है. वी डोंट वांट टू सी अ कैंडल लाइक दिस. ओके, वी वांट टू सी अ कैंडल at a higher level. We want to see a candle like this. Okay, so I want to see something like this, where you got a 3 straight bearish candle signifying strong start of a selling, but that got arrested midway before it could translate into a bearish structure. It got arrested, and then there was even a 1 day follow through, thereby negating this, thereby reducing the effect of this bearish engulfing. सो वीकली बेसिस पे मैं समझता हूँ कि अगर हम 17,980 के ऊपर क्लोज हो गए, यानी क्लोजर टू 18,000, लास्ट वीक की ओपनिंग के ऊपर अगर हम क्लोज हो गए तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट होगा बाय बुल्स. ओके, सो दैट्स ऑल आई हैव टू से ऑन निफ्टी. एंड लेट अस क्विकली हैव अ लुक एट बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी देखो बहुत ही सिंपल था आज के लिए. आई थिंक यस्टरडे वी स्पोक अबाउट
very clearly 38,200 will be mob level, below that 37,500. So बैंक निफ्टी बहुत ही सिंपल चार्ट स्ट्रक्चर था, तो बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली वही चीज हुआ है, 38 200 के नीचे 37,500. नाउ बैंक निफ्टी हैज कम एट सपोर्ट, बट यहाँ पे हम रिवर्स लॉजिक लेंगे. रिवर्स लॉजिक इसलिए लेना जरूरी है बिकॉज as you can see, bank nifty has withstand the fall. It is also showing resilient, but what if it collapses? करेक्ट, ये भी हो सकता है, क्योंकि जैसे इनिशियल जो स्टेज होते हैं डिक्लाइन के, यहाँ पे जैसे ये था, पहले धीरे धीरे फॉल हुआ, करेक्ट, देन सम बाउंस एंड देन इट गॉट टोटली सोल्ड ऑफ. सो हालांकि मुझे नहीं लगता 37,500 इज अ वेरी गुड सपोर्ट. 38,200 के ऊपर हम बुलिश हो जाएंगे. सो कल का जो मेक और ब्रेक लेवल है थोड़ा सा मॉडिफाई मैंने किया, 38,100 कर दिया है. ओके, सो द मेक एंड ब्रेक लेवल फॉर टुमारोज सेशन विल बी 38,100. above this it's all bullish. फर्स्ट टारगेट हम रखेंगे 38,500 एंड सेकंड टारगेट हम रखेंगे 39,000 स्ट्रेट अवे, राइट. बिलो 38,100 सिंगल टारगेट 37,500. दैट्स इट. कल का ही व्यू बैंक निफ्टी पे होगा. ओके, so that's all I have on Nifty and Bank Nifty front. Some heavy duty buying has come in the last 1 hour or so, and it managed to bounce also. Nifty futures ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है. Just like yesterday, you see, it came and closed exactly at the VWAP. This green line is the VWAP. Similar activity has happened. Very very similar structure also. You can see the VWAP around VWAP largest volume. Similar, very very similar thing has happened. So tomorrow, if you get some gap up opening, it will be very good and very very healthy sign. Okay, if we talk about some simpler charts of Nifty and Bank Nifty, so this is one chart which is like sort of very simple in nature. Here you can see why this level, why this trend line is very very significant. Needless to say anything. Okay, this is where the previous resistance were taken for this sort of a crack. Then we got a breakout, and now we are retesting. So it is a very very great support level, but because we are falling very aggressively, I would like to adopt the reverse approach. Reverse approach of what? That break the resistance, okay, and then we should turn bullish. Okay, so ये हम strategy को दोस्तों follow करेंगे. ठीक है, so this is a massive support in all terms. This is a massive support. We just need to bounce couple of 100 points, and then it will be again back to bulls. Okay, so that's all on Nifty and Bank Nifty front. We can take some stock queries if there are any stock queries. In the meantime, it is right now 10:50, so copper is bouncing nicely. Natural gas is also coming some live 284 level पे trade कर रहा है. सो नेचुरल गैस में काफ़ी लोग लॉन्ग साइड में ट्रैप हैं, हम भी थोड़ा ट्रैप हैं. बट एक अच्छा चीज़ है कि लास्ट टाइम इसमें बहुत रोटेशन करने को मिला था, सो दैट वाज वंडरफुल. ओके, सो दैट इज़ व्हाई देयर इज़ अ करेज टू होल्ड नेचुरल गैस विदाउट एनी फियर. ओके, लेट अस टॉक अबाउट सम स्टॉक्स, क्योंकि आई थिंक नाउ स्टॉक्स में अच्छी करेक्शन हो चुकी है. बहुत सारे स्टॉक्स में अच्छे लेवल्स वगैरह अब आ चुके हैं. सो 3 दिन में बहुत ही अच्छी करेक्शन वगैरह हो चुकी है मार्केट में. सो लेट अस टेक सम स्टॉक क्वेरीज. ओके, फाइन, चलिए देखते हैं पहला कौन सा क्वेरी है. और दोस्तों, लाइक का बटन दब नहीं रहा है, शेयर सब्सक्राइब भी आप लोग नहीं कर रहे हो, क्या बात है. डाउ जोन्स इज अप बाय 1%. यस. टेक महिंद्रा इज द फर्स्ट क्वेरी. सो टेक महिंद्रा आईटी पैक है. आईटी पैक में बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है टेक महिंद्रा का. वाई? बिकॉज नंबर वन, it has come back to the level that I wanted, which is close to 1625. Okay, so over here two things can happen. Number one, I foresee this to be a very good support. Okay, Nasdaq is also bouncing, but there is an earnings coming just around expiry, right? So for the time being, 1600 से लेके 1700 के स्लैब में मैं इस स्टॉक को देख रहा हूँ. चैनल स्ट्रक्चर है,
बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है. सो फॉर द टाइमिंग इट कैन बाउंस टिल से 1700, okay, and trade in this zone till earnings comes, and after that we will see. So ये 100 पॉइंट का ट्रेड है अभी, यहाँ पे आप इसमें प्ले कर सकते हैं. Once earnings is done, once it moves from out from this structure, then definitely इसको जो है एक हाई कन्विक्शन बाय करना चाहिए for another new high towards 2000 levels. Okay, so that's the view in Tech Mahindra. HDFC लाइफ, HDFC AMC, HDFC बैंक, ओके, तो पूरा दुकान खोल लिया है HDFC का. सो HDFC पहले लेते हैं. HDFC में बहुत करेक्शन हो चुका है, एंड HDFC एज ऑफ नाउ, यू नो, देयर इज नो ट्रेड, नथिंग. आई थिंक इसको छोड़ देना चाहिए. थोड़ा सा और ये डिक्लाइन कर सकता है. चार्ट अभी तक रेडी नहीं है. HDFC लाइफ, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले. HDFC लाइफ इंश्योरेंस, HDFC Life Insurance has taken a nice rejection from the trend line and again come back to the demand zone. As of now, no trade from my side in this. कुछ खास नहीं है, ठीक है, बस सपोर्ट है और कुछ खास नहीं है. रिलायंस की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज आज अच्छी करेक्शन के साथ वापस से थोड़ा और नीचे आए तो बात बनेगा. So Reliance is also being quite resilient, I would say. Reliance, I think tomorrow or day after tomorrow, within next, yeah, I think this weekend, right? रिजल्ट आना चाहिए रिलायंस का, प्रॉब्ली कल या आना चाहिए. सो रिलायंस में से एज ऑफ नाउ तो मुझे कोई ट्रेड नहीं दिख रहा है, बट एक चीज़ बता देता हूँ, अगर रिलायंस में एक अच्छी गिरावट आ जाए, यानी 2370 2400 के आसपास अगर रिलायंस मिल जाए किसी पैनिक में, किसी सेल ऑफ में, 2370 टू बी वेरी प्रिसाइज, देन कैश मार्केट में रिलायंस को बिंदास बाय करना चाहिए. ओके, बट लेट मी टेल यू, स्टॉप लॉस थोड़ा वाइड है. स्टॉप लॉस इस स्विंग के नीचे होगा. ओके, नाउ व्हाई आई एम सेइंग टू बाय, बिकॉज इफ यू रिमेंबर रिलायंस में मैंने पैनिक में एग्जैक्टली ये लेवल दिया था 2250 का बाय करने के लिए. ठीक है, यहाँ से 2250 से रिलायंस 300 पॉइंट ऊपर चला गया. अब ये जो चार्ट स्ट्रक्चर है ये कुछ इस तरीके का है. ठीक है, so if it comes here we should buy for that continuation in near future towards 3000 levels. ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ दिखे तो पैनिक में कैश मार्केट में लैप अप करके रख लेना चाहिए. आई डोंट थिंक रिलायंस इज गोइंग टू ब्रेक दिस. आई थिंक आई एम वेरी बुलिश ऑन रिलायंस. ठीक है, सो ये अपडेट है रिलायंस पे. एच डी एफ सी बैंक पहले बता चुका हूँ मैं. HDFC बैंक 1400-1500 के रेंज में कैश में बाय करो. 1800 का टारगेट है. व्यू चेंज नहीं होगा. ठीक है, एक ही व्यू है, हर रोज इसमें मैं व्यू नहीं बदलूंगा. टाटा मोटर्स एक बार चेक करते हैं. टाटा मोटर्स सेम व्यू है. 620 का अपना टारगेट इंटैक्ट है. टुडे आल्सो इंट्राडे was quite resilient. So Tata Motors, once it shoots above 535, I think straight away it will land at 600 levels. Canara Bank, again, we had discussed, if there is a fall near 204, just buy it. And right now, it is at resistance, so try to exit. Earnings are rahi hain. And now see, tomorrow if market is bullish, right from the word go, and you see this stock trading about 235, then do some trailing. Trailing bhi aap kar sakte ho, it is up to you. Okay. So, but the plan is very simple. The plan is, if you get a drop, then we will buy for further up moves. ठीक है. Now you see how the stocks, how this stock is resilient. Now generally क्या होता है, कोई भी मेजर इलेक्शन के पहले, मेजर यानी इधर यूपी इलेक्शन और अपना लोकसभा इलेक्शन, दो ही मेजर इलेक्शन होते हैं इंडिया में. तो PSU बैंक्स जो है ना, दे विल टेंड टू आउट परफॉर्म. ओके, नेक्स्ट जो है कंजम्पशन स्टॉक्स पे व्यू. कंजम्पशन स्टॉक्स यानी कौन से कंजम्पशन स्टॉक्स? क्लीन साइंस. ओके, क्लीन साइंस पे देखो बहुत रिटेल बाइंग हो रही है, थोड़ा सा संभाल के रहना. क्लीन साइंस में इस समय, जैसा पहले मैंने डिस्कस किया है, कि मैं इससे थोड़ा वेट कर रहा हूँ. 2300 के स्लैब में, 2200 के स्लैब में मैं इसे थोड़ा देखना चाहता हूँ. लेट इट बॉटम आउट एंड देन आई विल गिव अ ट्रेड. सो एज ऑफ नाउ मेरी साइड से इसमें कोई ट्रेड नहीं है. लेवल जो है 2222 का एक अच्छा लेवल है. यहाँ पे अगर आप बाय करते हो तो 100 रुपए के स्टॉप लॉस से आपको इसमें प्ले करना चाहिए. ठीक है. टाटा स्टील, फैंटास्टिक. आई वाज वेटिंग कि कोई मेटल्स पे पूछे, क्योंकि कल जो है मेटल्स में भयंकर मूव्स होने वाले हैं. सो टाटा स्टील
great. Tata Steel क्यों great कह रहा हूँ? क्योंकि very high chance that tomorrow it should stage a continuation. So we got this breakout, small breakout, but again there is a long-term resistance line that is coming, that is restricting Tata Steel from blasting out. So overall I believe थोड़ा सा push हो जाए, market थोड़ा संभल जाए, या maybe it starts to trade about 1230, a big breakout will happen, and it will start to move till 1300, 1320 and all those levels. Okay, so that is the view. So टाटा स्टील में अगर आप आपने सपोज बाइंग की है, तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा आपको 1140 का स्टॉप लॉस इस समय लेना चाहिए. दैट इज द लेवल फ्रॉम वेयर the breakout started. The breakout candle bottom is at 1140. So I think that should be your stop loss. And once it comfortably breaks out, closes about 1300 level, then you should carry. And probably 1370 and all these levels can also come. So Tata Steel पे ध्यान देना, बड़ी इसमें मूव जो है आने वाली है. And I hope it breaks on the higher side directly without coming down again. क्योंकि एक और बार नीचे आएगा तो अगेन वो भी अच्छी बात होगी, बिकॉज वीक हैंड्स निकल जाएंगे आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन. बट अगर डायरेक्टली शूट कर दे तो फिर कुछ मजा ही अलग है, बिकॉज so I've kept ready the long term chart of Tata Steel, so it has made good bottom. Okay, it has made good bottom, very nice structure. It's just a matter of time, just above this 1230 sort of level, it's all ready for 1300, 1350 and all those levels. Okay. Okay, let me take some other query. Somebody was messaging Trent. Okay. Don't spam. ठीक है, स्पैम मत करो. एक ही मैसेज को 50 बार मत लिखो. आप सुपर चैट कर सकते हो अपने आप को हाईलाइट करने के लिए. ओके, ट्रेंड देखो, अर्निंग्स आ रही हैं, थोड़ा सा ब्रेकआउट देगा, प्रॉफिट बुकिंग कर लेना. एशियन पेंट्स लेट मी सी. एशियन पेंट इस समय फ्रेश बाइंग अभी नहीं, थोड़ा सा वेट और करेंगे. ओके, जल्दबाजी में ये नहीं करना है. एशियन पेंट ऑलरेडी बहुत रन अप कर चुका है, सो अभी थोड़ा सा इसको शांति रहने देंगे. टीसीएस में एंटर करना चाहते हो? टीसीएस ऑलरेडी पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि टीसीएस में अगले राउंड में अगर एंटर करना है तो जो प्रीवियस गैप एरिया था, इस गैप के पास आने दीजिए, यानी और थोड़ा नीचे जाए तो मुझे इंटरेस्ट आएगा. अभी नहीं, ठीक है, अभी नहीं. ओवरऑल 4100 के काफ़ी क्लोज आ गया था, जाएगा और एक और ट्रिप में ऊपर जाएगा. बट आई डोंट वांट टू enter here. I would prefer somewhere here, somewhere deeper, this sort of structure. So either here, मतलब और नीचे, या फिर direct breakout. So I don't mind buying at a higher price, because at higher price you will have momentum. ठीक है, at lower price you will have margin of safety. So choose your ingredient, what do you want. यहाँ पे दोनों ही नहीं है, इसीलिए यहाँ मुझे इंटरेस्ट नहीं. ठीक है, सो मैं समझता हूँ 3700 का एक लेवल लेके चलते हैं. लेट अस सी, अगर आएगा तो देखते हैं. सो दैट्स द अपडेट. नेक्स्ट क्वेरी है एक्सिस बैंक पे. दोस्तों आज का सेशन थोड़ा छोटा रखेंगे, ऑलरेडी 42 मिनट्स हो चुका है, कल बहुत लंबा सेशन हो चुका था. सो आप लोग कमेंट्स भी नहीं करते, शेयर भी नहीं करते, तो यूट्यूब लंबे वीडियोस को जो है पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर देता है. ओके, सो वेरी इंटरेस्टिंग. एक्सिस बैंक अगर आपने बाई किया तो 700 का स्टॉप लॉस रखो. ओके, एंड इट इज मिक्स्ड, इट इज गिविंग मिक्स्ड सिग्नल बेसिकली. व्हाई मिक्स्ड सिग्नल? बिकॉज नंबर वन, this was a fantastic level, so it can be a case of a breakout retest for continuation. Second, it can be a bear flag for continuation on the lower side. तो मिक्स्ड है, एब्सोल्युटली मिक्स्ड है, बट 700 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है. ठीक है, इनफैक्ट मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप इस पे, अर्निंग्स आने वाली हैं, ये भी बात है, तो आप देखना, अगर बैंक निफ्टी वगैरह स्ट्रॉन्ग है, होल्ड कर रहा है, मार्केट भी ठीक है, तो 700 बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है. So you might get just before the earnings itself, you might see this level of 766. If you remember, last time इसका earnings के बाद बहुत ही sharp correction हुआ था, correct? So possibly it will
do something opposite. Okay, but हाँ 700 के नीचे नहीं. 700 is the last level. It must defend on closing basis, so keep an eye on 700. Immediately if you get say 764, then I think आपको फिर ट्रेल टू कॉस्ट करके फुल चांस लेना चाहिए. और अगर एट द सेम टाइम निफ्टी भी 18,000 रिक्लेम कर लेता है तब तो रखना चाहिए इनफैक्ट, because there is and many stocks are showing that similar behavior जहाँ पे ये पूरा space है and we have managed to come till here and then there was a decline in market. So that is what I'm saying कि next round में अगर ये सब stocks चलने लगे ना ऊपर तो बहुत फिर भागेंगे. That is why that mid cap and small cap index they are quite resilient because there is a chance for this thing to happen. So let us see. बहुत ही दिलचस्प सिचुएशन है. प्लस देयर इज अ बजट कमिंग अराउंड. सो मार्केट ने बहुत ही अच्छी पोजीशनिंग की है इस बार. इतना आसान नहीं होगा मार्केट को गेज करना. Last year it was very easy. If you see my video just one day before budget, last time बहुत ही क्लियर कट कहा था कि कितनी भी गिरावट आए जस्ट बाय करना. एंड राइट फ्रॉम मॉर्निंग मार्केट गैप्ड अप बजट में और ड्यूरिंग द बजट एक स्ट्रॉन्ग डिप आया एंड देन मार्केट रैलीड फॉर थाउजेंड्स ऑफ पॉइंट्स. So last time it was very easy. This time it is little difficult. Not that difficult, but हाँ थोड़ा कठिन है. एसआरएफ देखिए, एसआरएफ इस समय जस्ट ब्रेकआउट रिटेस्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा ऊपर है. मुझे इस समय इंटरेस्ट नहीं है. आई वुड प्रिफर थोड़ा और करेक्शन करे, थोड़ा कूलिंग इफेक्ट आए एंड देन वी कैन बाय. एसआरएफ इज़ अ वेरी जेन्युइन काउंटर. बहुत ही अच्छे इसके परफॉर्मेंस रहे हैं. सो एंड दोज हु अटेंडेड माय लास्ट ईयर्स, नो नो नॉट लास्ट ईयर, 2020 मेंटरशिप प्रोग्राम, हमने उसमें डिस्कस किया था कि एसआरएफ क्यों 13,000 जाएगा. और एस आर एफ स्प्लिट के पहले आई थिंक इट वॉज वेरी क्लोज टू दैट लेवल. और जब मैंने ये बात कही थी उस समय एस आर एफ मात्र 2,500 का स्टॉक था, यानी 600% स्टॉक मार्केट में, वो भी मेजर कंपनी में, टेक्निकल एनालिसिस यूज करके. कोई हवा वाली बात नहीं. ओके, जेएसडब्ल्यू एनर्जी. जेएसडब्ल्यू एनर्जी की तरफ चलते हैं. क्या बात है जेएसडब्ल्यू एनर्जी. सो जेएसडब्ल्यू एनर्जी कॉइलिंग स्ट्रक्चर में है. इसमें एक ही चीज हम कर सकते हैं ऐसे केस में कि इसका ब्रेकआउट जब क्लियर हो तब बाय करेंगे. ठीक है. सो एज ऑफ नाउ इट इज वेरी साइडवेज, नथिंग कैन बी सेड. हालांकि काफी रेजिलियंस तो शो कर रहा है स्टॉक, बट आई वुड लाइक टू सी दैट ब्रेकआउट थिंग एंड देन अडॉप्ट अ बाय ऑन डिप अप्रोच फॉर कंटिन्यूएशन. दैट सॉर्ट आई लाइक दैट सॉर्ट ऑफ प्राइस एक्शन. ओके, यहाँ पे बोलने के लिए तो ठीक है, बोलने के लिए इट लुक्स बुलिश. ओके, but the problem is I don't want to trade the opinion. I want to trade what I see on the charts, right? So as of now what I see on the chart is just my opinion that it's good and it should move up in this fashion. But that doesn't mean कि इसे फिर मैं खरीद लूँ, नहीं. Now suppose आपने अगर इसको नीचे कहीं मिला है आपको, if you have bought at 280 and it is in profit, then you have that margin of safety to take that chance, okay, in anticipation of this. So आपके पास वो मार्जिन है तो आप होल्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. बट किसी फ्रेश बंदे को यहाँ पे बोलना कठिन है. बट सपोज अगर आपको फिर भी करना है तो you can buy the breakout at about this 320 something, 325, and keep a stop loss of 290 or 285. That's it. Okay, यही इसका एक एक्सप्लेनेशन है और कुछ नहीं. जेएसडब्ल्यू एनर्जी हो चुका है. अगला स्टॉक है इंटेंस एनर्जी. सब लोग एनर्जी के पीछे क्यों पड़ गए? इंटेंस टेक्नोलॉजीज या इंटेंस, व्हाट इज दिस? इंटेंस टेक्नोलॉजी है. ठीक है दोस्तों, लाइक का बटन नहीं दब रहा है, शेयर सब्सक्राइब भी नहीं हो रहा है, कमेंट भी नहीं हो रहे हैं. ओके, इंटेंस एनर्जी अगेन वाइड रेंज कैंडल है, स्पाइक अप वॉल्यूम है. प्रॉफिट बुक कर लेना, कल थोड़ा भी ऊपर जाए तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना, और प्रॉफिट होने के बाद अगर और ऊपर गया तो रोना मत. ठीक है. कॉनकॉर्ड, क्योंकि मुझे जो चार्ट पे दिखेगा मैं वही कहूंगा. Concord is good structure, very good structure, nice pitchfork, breakout, coming back. ठीक है, अच्छा बंदा है, अच्छा ये एक स्ट्रक्चर है. तो मैं समझता हूँ कॉनकॉर्ड पे अगर हमें बाइंग करना है तो सबसे बेहतरीन लेवल क्या होगा? 625, 630. ओके, सो वन आउटराइट ट्रेड आई एम गिविंग बाय एट 625. ठीक है, विच इज द 200-day मूविंग एवरेज, which is also a very strong price level.
So buy at 630, 620. Keep a stop loss of this 593, and I think that should suffice. I'll be very surprised कि अगर ये इसको भी break कर दे. Very very surprised. Ideally, it should hit this in panic, spend some time, and then again start to move up in the next round. If this happens, it will not stop till 800 level is reached, where sorry, where if you draw a trend line from this to this should come. ठीक है, सो ये टारगेट हो 780 800 के आसपास. फाइन, सो दैट्स इट. आईटीसी, आईटीसी इस पे क्या कहना है? आईटीसी यार बने रहो 200 के लेवल को, आईटीसी ब्रेक नहीं करेगा, एंड यू विल नीड टू होल्ड दिस स्टॉक फॉर लॉन्ग टाइम. नेक्स्ट है जीएनएफसी. जीएनएफसी, जीएनएफसी, ओके. सो स्टॉक तो काफ़ी बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर लग रहा है. आई थिंक इसको पॉजिटिव में लेना चाहिए. वी हैव बैक टू बैक गुड वॉल्यूम सपोर्ट कमिंग. यहाँ भी बहुत अच्छी वॉल्यूम थी, पंप भी हुआ, देन ब्रेकआउट रीटेस्ट भी हुआ, एंड अगेन इट इज़ विटनेसिंग वॉल्यूम्स, एंड लास्ट 5 डेज से रेजिलियंस भी है. ओके, एंड अप्रोचिंग द प्रीवियस ऑल टाइम हाई. सो आई थिंक ये स्टॉक में दम है बॉस, और अर्निंग्स आने वाली हैं. ठीक है, अ सिमिलर एक्टिविटी वॉज सीन हियर, पंप देन सम करेक्शन, एंड अगेन सो मैं समझता हूँ, और सीजनैलिटी भी लगभग वही है. लास्ट टाइम भी फेब के आसपास हुआ था, अभी भी फेब आने वाला है. सो मैं समझता हूँ इस स्टॉक में दो चीज़ हम कर सकते हैं. सपोज इफ़ यू आर अर्ली बायर, आपने नीचे कहीं यहाँ कहीं खरीदा है, तो मैं समझता हूँ कि विद दिस एज अ स्टॉप लॉस, कंटिन्यू टू होल्ड till this stock doesn't reach at least I would say uh, at least I would say 600 लेवल. ठीक है. दूसरी बात कि अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है, तो इसमें हम ऐसे कर सकते हैं कि या तो आप डायरेक्ट बाय कर लो यहाँ पे, और कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 440. ठीक है, जो कि 50 रुपए का होगा. दोनों का टारगेट, पहला टारगेट 555 एंड सेकंड टारगेट हम 600, इसको लेके चलेंगे. ठीक है. सो ये व्यू है. एच डी एफ सी बता चुका हूँ, एच डी एफ सी बेरिश है इस समय. अच्छा, लेट मी बी वेरी क्लियर. चलो, जैसे एच डी एफ सी है, ठीक है, इफ आई से आई एम बेरिश ऑन एच डी एफ सी, ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि कल जाके आप शॉर्ट कर दोगे. ठीक है ना, ये मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मिसकम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए. बेरिश का क्या मतलब है कि ये स्टॉक में अभी कोई बुलिश ट्रेड नहीं है, दम नहीं है. देयर इज अ स्कोप टू फॉल 5% मोर, बट दैट डजंट मीन कि आप इसको शॉर्ट करोगे. शॉर्ट किसको किया जाता है? जिसपे स्पेसिफिकली हम बोलें कि हाँ ये शॉर्ट वाला ट्रेड है. ठीक है. सो आई होप इस बात का आप ध्यान रखेंगे. मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए. अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसे क्लियर करो, बात करो, डिस्कस करो, सुपर चैट करो, जो करना है करो, बट मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए. केपीआर मिल, देखिए केपीआर मिल में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें. नंबर वन, स्टॉक टू मच ऑफ अ मूव कर चुका है. मैं बहुत ही कंजर्वेटिव टाइप का बंदा हूँ, तो मैं यहाँ पे इसमें निकलना चाहूँगा. अच्छी चीज़ क्या है पता है? अच्छी चीज़ ये है कि देयर हैज़ बीन अ वेरी ड्रामेटिक रिडक्शन इन वॉल्यूम विद राइज इन प्राइस. और जनरली आप किसी और टेक्निकल एनालिस्ट को बोलेंगे तो वो बोलेगा ये खराब बात है, बट ये एक्चुअली में बहुत अच्छी बात है. वाई? if there is a lack of volume at a higher level, that means the interested parties, जिनके पास स्टेक होता है ना, कंपनी के जो स्टेक होल्डर होते हैं, ठीक है, मल्होत्रा साहब के पास 15% है, ठीक है, ओबेरॉय साहब के पास जो है 18% है. तो जो साहब लोग होते हैं जिनके पास स्टेक होता है, ये जब एग्जिट मारते हैं ना, तो आपको ऐसी वॉल्यूम्स दिखती हैं. ठीक है, दैट इज वाई वेन एवर देर इज अ वाइड रेंज बार, आई टेल यू जस्ट टू एग्जिट. क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रमोटर खाली कर चुका है. ठीक है, अगेन ओबेरॉय साहब ने यहाँ पे भेज दिया, ठीक है, अगेन खाली हो गया. ये आपको हर स्टॉक में हर जगह दिखाई देगा. ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे मिसिंग है. इसका क्या मतलब है कि ये स्टॉक में अगर कोई गिरावट आती है ना, तो इसे बिंदास बाय करना चाहिए. ठीक है, इसलिए मैंने कहा यहाँ पे थोड़ा निकल जाओ, बहुत ज़्यादा रनअप है, और इसको नोट किया जाए. एंड नेक्स्ट टाइम इफ यू सी दिस स्टॉक एट 600 लेवल, जस्ट रिमाइंड मी, इट्स अ फैंटास्टिक चार्ट स्ट्रक्चर, एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज कि ये अगर
600 आया और 600 से भाग जाए 900, तो मुझे तो कोई भी सरप्राइज नहीं होगा, ठीक है। सो बहुत ही बढ़िया एजुकेशनल कंटेंट की मैंने अभी बताई आपको। आई होप आप लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। ओएनजीसी दादा बुलिश काउंटर है। ओएनजीसी 10-12 दिन पहले बात हुई थी यहाँ पे, जो ब्रेकआउट था 151 से न्यू हाई की बात हुई थी 172, बहुत नज़दीक आ चुका है। प्रॉफिट बुक करो, शॉर्ट मत करो, ठीक है। किसी भी कमोडिटी एनर्जी रिलेटेड चीज़ों को शॉर्ट करना बहुत रिस्की है। ओके, यू मे नेवर नो कब स्पाइक अप हो जाए। एंड कॉपर जो है पूरी तरीके से आग लगा रहा है, 760 हो चुका है, अभी 1 घंटा है बाजार। जिंक 300 के ऊपर, बहुत ही ट्रिमेंडस मूव्स हो रहे हैं कमोडिटीज़ में। आई थिंक कमोडिटीज़ में ही पूरा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आई फील एग्री कमोडिटीज़ एंड ऑल दीज कमोडिटीज़ कहीं ये थीम ना बन जाए 2022 के लिए, हाइपर इन्फ्लेशन एंड ऑल दोज थिंग्स। इंटरेस्टिंग, थोड़ा ध्यान देना होगा कमोडिटीज़ के मैक्रोज पे। व्हाट हैपेंस इज कि एक आदमी कितना कवर करे, द प्रॉब्लम इज दैट, और सिर्फ 24 घंटे हैं, सो ये प्रॉब्लम है। Okay, anyways, solar industries is the next query. Solar industries, दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सोलर इंडस्ट्रीज इज जस्ट ट्राइंग टू रिवर्स, बट नथिंग, नो नो नो, कुछ नहीं अभी कुछ नहीं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड एंड आई वुड लाइक दिस स्टॉक टू प्रूव इट्स वर्दीनेस फॉर माई इंटरेस्ट टू कम। टेक्निकली स्पीकिंग, एनी अप मूव शैल बी लिमिटेड टिल 2444, 2444। प्राज इंडस्ट्रीज, प्राज पे राज बैठा है। सो प्राज इंडस्ट्रीज अगेन वाइड रेंज कैंडल, लॉट ऑफ वॉल्यूम्स, निकलो भाई, ठीक है। सी इसमें जस्ट एक थोड़ा सा फिब देख लेते हैं। आई थिंक ऑलमोस्ट डन है, या डन है, ठीक है। देखो प्राज में एक चीज बताता हूँ, ठीक है। अभी एक काम करना, इसको अब ट्रेल, एग्रेसिव एंट्री दे रहा हूँ, ट्रेल कर लेना 417 पे, ठीक है। कल अगर ये गैप अप करता है ना 444 के ऊपर, थोड़ा गैप अप कर दिया 444 के ऊपर ही ट्रेड करे, इमीडिएटली 480 चल जाएगा, वहां पे एग्जिट, फाइनल एग्जिट वहां पे डेफिनेटली कर देना चाहिए। ओके, नाउ Praj Industries is a little different case here. Why? Because it was under reaccumulation for almost 6 months. तो ये 6 month का गैप से ब्रेकआउट है। Look at this. Whenever you have a really good consolidation, a long consolidation breaking out with a gap up opening, it's fantastic, ठीक है। तो प्राज में आप ये भी कर सकते हो, थोड़ा सा लेवल और नीचे हो जाएगा, बट ये भी कर सकते हो कि राउंड अबाउट 400 को ट्रेल करो और थोड़ा सा ये ऊपर चल जाए, यानी 480 500 यहाँ पे आप निकल जाइए, ठीक है। आइडियली ये होना चाहिए। नाउ इट इज अप टू योर डेस्टिनी। ओके, यस, ये तो है, मोनोपोली है बट रीच नहीं है। मोनोपोली से नहीं होता, रीच होना चाहिए। आईआरसीटीसी के पास मोनोपोली भी है, रीच भी है, इसीलिए उसका शेयर चलता है, ठीक है। हमारा रीच नहीं है, अपन बहुत छोटे रीच वाले लोग हैं, और वो एक अच्छी बात भी है। टीसीएस हो चुका है कवर, आई थिंक आप अभी नए नए चैनल पे हैं। टीसीएस हो चुका है कवर, 3700 का वेट करेंगे। आईईएक्स भी तो डिस्कस हो चुका है। आईईएक्स आईईएक्स तो पिछले 5 दिन से डिस्कशन हो रहा है, तो आईईएक्स में इसको उठा लो, 246 240 पे उठा लो, एंड 230 का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अगर भागना शुरू किया तो पहला टारगेट 286 चैनल रेजिस्टेंस, एंड वंस दैट 300 इज क्रॉस्ड, देन फिर मैं अभी कुछ बोलना नहीं चाहता, ठीक है। थोड़ा सा आराम से चलते हैं। वॉल्टिलिटी कॉन्ट्रैक्शन है, पिचफॉक के अंदर चल रहा है, बहुत ही जबरदस्त। बस मार्केट है ना, ज़्यादा वीक ना हो यहाँ से, तो आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट्स होने वाला है इन स्टॉक्स में। जस्ट यू नीड लिटिल बिट ऑफ लक इन नेक्स्ट 2 days। ठीक है, तो किसकी बात हुई थी? पीटीसी। देखो पीटीसी ने गेम कर दिया है। पीटीसी ने जस्ट
in last two sessions it was showing a very nice structure, very nice attempt to break out, but today it has been smacked down towards 200 day moving average. तो अब क्या समझ में आ रहा है कि जब तक ये लेवल यहाँ से क्राइम हुआ है, तो जब तक ये 114 के 115 के ऊपर नहीं जाएगा, स्टॉक जो है इसी रेंज में या थोड़ा सा और बेरिश हो सकता है, 95 तक जा सकता है। ठीक है, सो अभी इसमें मैं तो कोई ट्रेड नहीं एडवाइस करूंगा, क्योंकि इससे मच मच बेटर चार्ट्स आर देयर, तो हम वहां क्यों ना फोकस करें। ठीक है, नाउ बहरहाल सपोज अगर आप इसमें फंस चुके हैं, कुछ ट्रैपिंग वगैरह हो गई है, तो एक चीज हम ये कर सकते हैं कि 94 रुपीज का स्टॉप लॉस एक बार लेके चलते हैं, which has been a very good support earlier, right? So we can take this as a stop loss, hope for the best, and if you see it coming back towards your cost, एक बार exit करिए और बाद में हम इसको fresh assess करेंगे। नेक्स्ट क्वेरी है विप्रो। ओके, विप्रो, सी विप्रो एवरीडे डिस्कशन हो रहा है। क्यों डिस्कशन हो रहा है? बिकॉज विप्रो का चार्ट स्ट्रक्चर ठीक है, ओके, बट अभी ट्रेड नहीं है। ठीक है, सो ट्रेड कब होगा? जब रिवर्सल शुरू होगा। सो एज ऑफ नाउ इट इज बेरिश, and the earlier swing low was near 600, so probably it will challenge that 600 level and reach 580, but nothing, no trade as of now, just give it some time। okay, जैसे एक पेड़ होता है, आपने लगा दिया तो वो उगेगा नहीं, आपको पानी देना होगा, ख्याल रखना होगा, वैसे ही चार्ट्स हैं, आपने लेवल्स मार्क कर दिए तो ट्रेड नहीं होता, आपको उसको समय देना होगा, लेट इट डेवलप इट सेल्फ, एंड व्हेन इट इज वेरी नर्चर्ड क्यूरेटेड, जब वो रेडी है तब हमें उसको अटैक करना चाहिए। एम्फोसिस, आई थिंक एग्जांपल गलत था, पेड़ का एग्जांपल गलत हो गया यहाँ पे। एम्फोसिस, एम्फोसिस इज अगेन सिमिलर, आप देखिए विप्रो वाला ही चार्ट स्ट्रक्चर है ना। ठीक है, अभी विप्रो खोला था मैंने, सी विप्रो है ना, एग्जैक्ट विप्रो। सो बस समझ जाओ, अभी कोई ट्रेड नहीं है, वेट करेंगे और डिक्लाइन होगा। ओके, जुबिलेंट फूड वर्क्स, jubilant food works is here, let me see what's happening here। Natural gas has bounced back 286, 287. Crude oil has dropped after filling up the gap, and copper is going all the way, melting all the shorters badly। ठीक है, गोल्ड जो है, गोल्ड भी अच्छा 200 पॉइंट जो है छोड़ चुका है। ठीक है, गोल्ड तो कल देखेंगे। जिंक तो बहुत ही तहलका मचा रहा है जिंक। मुझे लग रहा है कहीं निकल जो है, इसे भी कहीं जोश वापस से ना आ जाए और ये कहीं 1900 ना भाग जाए, because just it is holding under the VWAP, and you know सी ये एक्चुअली बहुत ही जबरदस्त चार्ट स्ट्रक्चर है निकल का इस समय। 30 मिनट की टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर एक ब्रेकआउट मिला ना 1790 का, तो इसको बाय कर लो 1768 के स्टॉप लॉस से। हो सकता है क्लोजिंग 1840 मार दे, कुछ भी हो सकता है, स्पाइक अप मार सकता है। ओके, कमिंग बैक टू दिस जुबिलेंट। सो जुबिलेंट देखिए आ चुका है बाइंग जोन पे, थोड़ा सा रुकेंगे और थोड़ा रुकेंगे। ठीक है, नो नीड टू रश, वी हैव वेरी गुड लेवल्स मार्क्ड ऑन दिस स्टॉक। सो लेट अस सी, अगर थोड़ा और नीचे 100 पॉइंट 150 पॉइंट नीचे मिले तो बेहतर होगा, थोड़ा सा वेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेरी है JSW स्टील इज द नेक्स्ट क्वेरी। और दोस्तों 1 घंटा 5 मिनट हो चुका है लाइव स्ट्रीम को, वाइंड अप करेंगे। JSW स्टील एज ऑफ नाउ गोइंग नोवेयर, अगेन रेजिस्टिंग एट 700, and see, but JSW में somehow my gut feeling says if I go with the higher time frame charts, ठीक है, I feel the it should bounce till 870। मतलब इसमें है बहुत अभी पोटेंशियल है बॉस। आई डोंट नो व्हाई दिस इज अ मैसिव बुलिश स्ट्रक्चर टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट है, दिस इज अ मैसिवली बुलिश फ्लैग पैटर्न। अगर मैं सिंपल अपनी मार्केट ज्योमेट्री की बात करूं तो कम से कम ये ताकत रखता है 1000 रुपए तक आने वाले 6 महीने में, विद द सपोर्ट ऑफ दिस बॉटम एट 590। ठीक है, सो मैं समझता हूँ कि इस स्टॉक में जब बड़ी पिक्चर रोबस्ट है तो छोटे पिक्चर में अगर डिक्लाइन आती है ना, तो मैं इसमें बाय करूँगा।
ठीक है। ना रही बात कि सपोज आपने पहले कुछ ट्रेड किए हुए हैं तो उसमें अभी जब तक 700 ब्रेक नहीं होगा, अपसाइड नहीं आएगा और नीचे में 628 के आसपास मैं इसमें बाय करूंगा। बीच में देयर इज नथिंग टू सजेस्ट, ओके, देयर इज नथिंग टू सजेस्ट। वेरी सून वी विल हैव अ रेजोल्यूशन ऑन दिस, वेरी सून, द टाइम इज कमिंग, ओके। One good query. Manjushri Bhattacharya, thank you, thank you. How to read on chart? Okay, thank you. सी बेस्ट ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आपको टेक्निकल सीखना है, चार्ट सीखना है ना, तो आप रोज लाइव स्ट्रीम देखो। पहले थोड़ा सा फाउंडेशन अपना बना लो, बेसिक ऑफ टेक्निकल्स क्या होते हैं, ऑल दोज थिंग्स। एक बहुत ही बढ़िया एक उसका शॉर्टकट तरीका ये है, यू कैन जॉइन दी ट्रेनिंग। आई एम नॉट ट्राइंग टू सेल और प्रमोट, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है, दैट विल ले दी फाउंडेशन। यू विल have 2 days of training which, and you will have one revision class also that will be free, उसका भी कोई चार्ज नहीं होता। एक रिविजन क्लास हर स्टूडेंट को फ्री मिलता है, एंड 3 months ऑफ टेलीग्राम एक्सेस, तो उससे आपको एक बेस बन जाएगा। एंड देन स्टार्ट वॉचिंग लाइव सेशन एवरी डे 1 घंटा आप देंगे 6 महीने तक। आई डोंट थिंक कि वाई यू शुड नॉट बिकम सुपर चैंपियन इन टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। क्योंकि एवरी डे वी आर डिस्कसिंग ऑल द new things that are happening in market, that to all asset classes. Shriram Properties and Bank Baroda moved very well. Thank you, thank you, thank you. श्रीराम प्रॉपर्टीज पे तो मैं फुल मल्टी बैगर मूड में हूँ, ठीक है। जब तक मंदिर खुलता नहीं है सिर्फ बाय करेंगे। एचसीएल टेक्नोलॉजीज, नेक्स्ट क्वेरी। एचसीएल टेक्नोलॉजीज में 1230, सॉरी 1230 तो आ ही चुका था, बट नो सी वेरी गुड केस स्टडी। जब ये स्टॉक ऊपर था तो मैंने कहा था कि इसमें जब 1230 आएगा तो इन्फॉर्म करना, वहां पे हम बाय करेंगे। 1230 आता है बट हमने बाय नहीं किया। क्यों नहीं किया? दिस इज व्हाट डिफरेंशिएट बिटवीन अ एमेचर एंड अ प्रो। एमेचर जो है वो लेवल पे काम करेगा, प्रो हमेशा चार्ट स्ट्रक्चर पे काम करेगा। तो प्राइस तो आ गया, बट यहाँ पे बाय, पहले जो प्लान था उसको फॉलो क्यों नहीं किया, क्यों नहीं बाय किया? बिकॉज देर वॉज नो स्ट्रक्चर, देर वॉज नो रिवर्सल, ओके। This is what you get by watching our live session. Proper update. So इस स्टॉक पे बहरहाल थोड़ा वेट करेंगे। मैं इस पे बुलिश हूँ, वेट करेंगे। अच्छा, ये एक बार रिवर्सल मिलेगा ना तो इसको लैप अप करेंगे नेक्स्ट राउंड में, बम्पर, ठीक है। कैनफिन होम, काफी देर से ये स्टॉक है कैनफिन होम्स। जो लोग अभी जुड़े हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइए, फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अगर इस वीकेंड की ट्रेनिंग में लास्ट एंट्री लेना चाहते हैं तो केवल 25 मिनट और बचे हैं। 12 बजे के पहले जो है आप व्हाट्सएप कर दीजिए, एंड देन यू कैन ज्वाइन टिल मॉर्निंग ऑल्सो, नो इशूज, बट यू कैन व्हाट्सएप एंड एटलीस्ट कंफर्म। कैनफिन होम, देखो कैनफिन होम, कैनरा बैंक, दोनों का चार्ट सेम है, ठीक है। तो इस स्टॉक पे मैं बुलिश हूँ, अर्निंग्स आ रही है। अगर इसमें पैनिक में ना ये लेवल मिला 560, तो इस स्टॉक को कैश में ना लैप अप करके रख लो, कैश में लैप अप करके रख लो। 500 का स्टॉप लॉस होगा। बजट के पहले 740 के ऊपर ये स्टॉक दिखना चाहिए, जस्ट अराउंड बजट, ठीक है। सो बहुत ही बढ़िया चार्ट स्ट्रक्चर है। जोमेटो के बारे में मैं बता चुका हूँ सर। जोमेटो पे मेरा व्यू बहुत ही बकवास है। मैं इस पे एक बार बुलिश हुआ था 175 के लिए, जो हो चुका है, और उसके बाद से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। जोमेटो, पेटीएम, नायका एंड देयर आर कपल ऑफ अदर्स, ये 3 तो मेरे हिट लिस्ट में है, ठीक है। तो इनसे तो दूर ही रहो, बस, ज्यादा नहीं कहूँगा। आंध्रा शुगर पे क्वेरी है। आंध्रा शुगर्स, जो स्टॉक हिट लिस्ट में आ गए ना, तो उनका फिर उनकी शनि दशा जो है शुरू हो जाती है। आंध्रा शुगर, वेरी सॉलिड ब्रेकआउट, ओके, वेरी सॉलिड ब्रेकआउट, इनवर्स वीसीपी मैसिव, एंड द ओनली थिंग इज दैट देयर माइट बी दिस रेजिस्टेंस व्हिच कैन प्ले अराउंड विद दिस, ठीक है। इसमें देखो आपके ऊपर है। आप मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा ये और ऊपर जाए ना तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग करें, ठीक है। सो आई थिंक इस समय थोड़ा सा आप इसको ट्रेल करेंगे तो उचित होगा। शुगर है, शुगर की थीम है, अर्निंग्स को भी और 4-5 दिन है,
थोड़ा और ऊपर गया अराउंड 172 तो प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है, सो दैट्स द अपडेट ऑन दिस स्टॉक। नेक्स्ट है यूपीएल के बारे में बताएं। 850 जा सकता है। ओके, यूपीएल तो अपना बहुत ही फेवरेट काउंटर है। यूपीएल में अगर आप लास्ट 3 मंथ्स की बात करें कि हाउ मेनी पीपल रिमेंबर यूपीएल में, ये जो दिन का वीडियो होगा ना अराउंड दिस 2 3, आप देखना यहाँ पे एग्जैक्टली क्या बात हुई थी, मैं याद दिला रहा हूँ। फर्स्ट इट विल गो अप, देन इट विल कम डाउन, देन अगेन इट विल गो अप, अगेन इट विल कम डाउन, अगेन इसको बाय करने को मैंने कहा था एडवांस में फॉर न्यू बुल मार्केट टू स्टार्ट इन दिस स्टॉक इररिस्पेक्टिव ऑफ वेयर निफ्टी विल गो, दिस विल कंटिन्यू इन इट्स बुल मार्केट। ठीक है, आई एम श्योर एटलीस्ट जो रेगुलर होंगे स्टूडेंट्स या ये इनको याद होगा। ठीक है, सो ये देखो, जब इसको कहते हैं चार्ट स्ट्रक्चर की ताकत, प्राइस नहीं चार्ट स्ट्रक्चर। खेल तो उसी भाव पे हो गया, बट चार्ट स्ट्रक्चर इतनी बेहतरीन थी कि आने वाले सारे स्विंग्स प्रिडिक्ट हो गए एंड दैट टू करेक्ट। ओके, सो ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है। नाउ हैविंग सेड दैट, अगर यूपीएल में आपने बाय किया है 850, यार 850 पे क्यों बाय करती हो? जो पुराना स्विंग है ये यहाँ पे क्यों बाय करती हो? यही चीज तो मैं समझाता हूँ। ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी है, ये चीज हमारे हाथ में, इस टाइप की मिस्टेक। ओके, एनीवेज, सो यूपीएल में अच्छी बाइंग जोन यहाँ पे 770 with a stop loss of 725 for an eventual massive target of 950,000 rupees। ठीक है, सो वेरी बुलिश काउंटर, इसे नोट कर सकते हैं। 760 पे अगर मिले तो बहुत ही बेहतरीन होगा। लॉन्ग टर्म चार्ट में इसका बहुत पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ यूपीएल का। सी, यूपीएल में क्यों मैंने गारंटी दिया था कि ये स्टॉक 1000 जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, नाउ डज दिस रिमाइंड यू ऑफ अ चार्ट विच वी जस्ट नाउ टॉक्ड अबाउट? कौन सा मेटल चार्ट हमने बात किया था? थोड़ी देर पहले की बात है, मेटल स्टॉक बात किया था अभी थोड़ी देर पहले। कौन बता सकता है कौन से चार्ट की बात कर रहा हूँ मैं? बता दो, लिख के बता दो। यही चीज़ ऐसे ऐसे ड्रॉ की थी, करेक्ट? सेम चीज़ यहाँ पे हो रहा है। सो दिस इज हाउ यू सी, मार्केट मेमोरी आपको हेल्प करता है। इसलिए मैंने कहा कि जेएसडब्ल्यू स्टील जो है ना, बहुत ताकतवर काउंटर लग रहा है मुझे। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं साजन जिंदल बीजेपी ना ज्वाइन कर ले, हो सकता है, पॉसिबल है। जेएसडब्ल्यू स्टील करेक्ट जवाब, सही जवाब। टाटा स्टील नहीं, जेएसडब्ल्यू स्टील। टाटा स्टील भी है, टाटा स्टील भी इट्स वेरी नाइस वैसे तो, बट जेएसडब्ल्यू इज द करेक्ट टारगेट, क्योंकि अभी हमने जेएसडब्ल्यू डिस्कस किया था। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेरी लेते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत लंबा वीडियो हो चुका है और यूट्यूब हमारे खिलाफत मूवमेंट कर देता है, सप्रेस कर देता है पूरे वीडियोस को, चैनल को डी प्रमोट कर देता है। जय कॉर्प, लेट अस टेक जय कॉर्प। जय कॉर्प, प्रॉफिट बुकिंग करो। ठीक है, अर्निंग्स आ रही है, ओवरऑल ठीक है। आई थिंक एक बार प्रॉफिट बुकिंग करना वाजिब होगा। 160 के भाव पे अगर दिखा तो डेफिनेटली, 160 भी नहीं, इनफैक्ट 153 154 इज अ गुड इनफ लेवल। सी दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स, नेवर वरी अबाउट दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स, क्योंकि ये हमेशा आपको री एंट्री देंगे। ये कोई मेन स्ट्रीम स्टॉक नहीं है, तो इसमें तो कभी डरने का ही नहीं। प्रॉफिट हुआ, बेचो, निकलो, वापस मिलेगा। नेवर एवर थिंक अबाउट दिस काइंड ऑफ स्टॉक। इन्फोसिस एक अच्छा काउंटर है, अच्छा क्वेरी है, तो लेना पड़ेगा। इन्फोसिस एक बहुत ही बढ़िया, क्या टारगेट था इसमें भैया अपना? 1940। व्हाट वाज द टारगेट? 1940 लास्ट टारगेट था इन्फोसिस में। मैंने तो आपको यहीं पे चेतावनी दे दी थी कि इसमें से निकल जाओ, टारगेट और ऊपर है बट छोड़ दो। देन इट ड्रॉप्ड, ओके, एंड अगेन इट स्टार्टेड टू रैली। तब भी रिमाइंड किया कि दूसरा मौका मिल रहा है, दूसरे में मत गवाना, क्योंकि हो सकता है तीसरा ना मिले। तो अगेन सो क्या बोले, क्या रिपीट हो रहा है इस स्टॉक में? क्या लॉजिक है इस स्टॉक में? लॉजिक है फ्रैक्टल। कौन सी फ्रैक्टल? ये देखो 1 2, ठीक है। सो वी आर राइट नाउ समवेयर नियर दिस। ओके, सो इस स्टॉक को अभी छोड़ देंगे, ठीक है। लेट इट कंप्लीट इट्स ओन zigzag and all those things, and later on we will get good setup in this stock. Now whenever a chart looks very messy, जैसे ये है ना, बहुत messed up कुछ दिख रहा है, तो हमेशा चल जाओ अंतिम टाइम फ्रेम पे, यानी मंथली, because this will fade out all the noise. Now the chart looks very clear, correct? और यही मैं अगर डेली दिखाऊं तो चार्ट जो है बहुत ही messed up दिखता है।
तो हमेशा टाइम फ्रेम को चेंज करो। आदित्य बिरला सन, व्हाट इज दिस? आदित्य बिरला सन स्टॉक, आदित्य बिरला सन लाइफ, आई थिंक ये आपकी क्वेरी है शायद। लेट मी सी। गोदरेज प्रॉपर्टीज एक बार डिस्कस कर लेंगे सी। ओके, सो दिस स्टॉक एज ऑफ नाउ नो व्यू, थोड़ा सा और नीचे आए तो हम बात करेंगे अराउंड 500 के आसपास। गोदरेज प्रॉपर्टीज एक बार चेक करते हैं फटाफट। गोदरेज प्रॉपर्टीज, गोदरेज प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किया था सेकेंडरी ड्रॉप के लिए इनसाइड बार बना दिया है, बहुत ही बढ़िया चीज, वेरी नाइस। ओके, सी स्टॉक में थोड़ा सा मैं एग्रेसिव, अभी सी कल क्या होगा मार्केट में आई डोंट नो, राइट? और आप शायद ग्रुप में भी नहीं है। सो सपोज टुमारो देर इज अ फ्लैट टू गुड मार्केट, फ्लैट टू पॉजिटिव सॉर्ट ऑफ मार्केट। सो इस स्टॉक को कल थोड़ा बाय करो और आधी पोजीशन का पैसा जो है ना उसको रख दो। वो हम कब बाय करेंगे? जब ये या तो यहाँ आए या फिर इसके ऊपर जाए, दैट्स इट। तो यहाँ क्यों बाय कर रहे हैं? सो दैट वी डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी इन केस इफ मार्केट स्टार्ट्स टू राइज फास्टर, करेक्ट? सो दैट इज वाई थोड़ा तो रख लेते हैं, बाकी फिर हम देखेंगे, ठीक है? या तो ब्रेकआउट या तो वैल्यू बाय करेंगे यहाँ पे, तो ये अप्रोच रखेंगे, ठीक है? सो दैट इज द प्लान फॉर दिस स्टॉक। एंड ओवरऑल हम इसका एक इनवैलिडेशन स्टॉप लॉस वगैरह जो है हम थोड़ा डीप रखेंगे अराउंड 1660 के आसपास। एंड एज सुन एज इट स्टार्ट्स टू मूव अप वी विल स्केल अप द स्टॉप लॉस एज क्लोज टू कॉस्ट एज पॉसिबल, ठीक है? दैट्स इट। आई थिंक बहुत ज़्यादा लंबा सेशन हो चुका है और ये जितने जो ये सब हैं मार्क जकरबर्ग और गूगल वाले, ये सब हमारे अगेंस्ट हो जाते हैं। तो आज के लिए यहीं पे सभा को समाप्त करेंगे, ठीक है? एंड कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए, जिनकी क्वेरीज नहीं ली गई है आप कमेंट सेक्शन भर दो पूरा, ठीक है? पूरा तहलका मचा दो एंड वीकेंड में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा एक बात, वीकेंड में ट्रेनिंग है सैटरडे संडे, सो हो सकता है वीकेंड एनालिसिस ना कर पाऊँ मैं, क्योंकि ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च हो जाती है, सुबह से पूरा रात हो जाता है ऑलमोस्ट। बट स्टिल आई विल ट्राई माई बेस्ट। अभी तक मेरी 90% की एक्यूरेसी रही है ट्रेनिंग के दिनों में, यानी कि ट्रेनिंग के बाद 90% का मेरा अटेंडेंस रहा है, एक्यूरेसी की अटेंडेंस। सो आई वुड लाइक टू मेंटेन दैट अटेंडेंस, बट इन केस मैं नहीं आ पाया तो समझ जाना कि ट्रेनिंग की वजह से नहीं आ पाया, ठीक है? एंड देन वी विल मीट ऑन मंडे। सो दैट्स ऑल। चैनल को सपोर्ट कर दीजिए, शेयर सब्सक्राइब प्यार कर दीजिए चैनल को। एंड थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस इक्विटी मार्केट के लिए, सो प्लीज़ बी केयरफुल एंड वॉच आउट। थैंक यू, गुड नाइट, जय माता दी।